डॉक्टर खिलानी, नींद को लेकर आम लोग क्या समझे? सिर्फ सो जाना नींद है क्या? ये क्यों और कितनी जरूरी है? कितने समय की नींद जरूरी है? हाँ प्रीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नींद है क्या। सिर्फ इंसान ही नहीं सोते, जो एनिमल्स जानवर हैं वो भी सोते हैं। सबकी नींद की एक साइकिल होती है और हम जो नॉर्मल इंसान है वो 7 से 8 घंटे सोते हैं। इसको ये नींद के जो फायदे होते हैं वो एक रिजुविनेशन होता है। रिजुविनेशन मतलब जो फिजिकल होता है और मेंटल होता है। उसके अलावा जो है, जो ये भी माना जाता है कि जो मेटाबोलाइट्स हमारे होते हैं उनकी क्लियरेंस भी नींद के दौरान होती है। इम्यूनिटी का रिजुविनेशन भी नींद के दौरान होती है। Move to Dr. Khilnani's. A very common question in the outpatients. Patients always ask us, they also read about some leaders sleeping only 5 hours, 4 hours, and they wonder why they can't do that. And there are others who say that they don't feel refreshed even with 8 hours sleep, 9 hours sleep. So what should be a normal expectation for a normal person? How much should the person be sleeping? Thank you, Amrish, for having me here. Very important question that you have asked. It's a very common thing that I had a sound sleep. Yeah. And there's nobody on this earth who doesn't have disturbance of sleep. That is physiological. But one has to understand that in a person who does not have any sleep disorder, 6 to 8 hours of the sleep is required for rejuvenation of the body, metabolites, and mind and body both. Now there are several disturbances which can occur during the sleep. One is that one is not able to go to sleep. Second is that he may get up in between because of disturbance. And third is that he may wake up earlier than expected. That is, sleep time is much less. And this could be because of the somatic condition. Somebody has pain or some difficulty or headache or abdominal pain. That's we are not talking about. It can be because of some psychological issues, and it could be because of something called that sleep disordered breathing. Now this of course is going to be a point of discussion. So it's not that everybody requires 8 hours of sleep. Some people do well with the 5 hours of sleep. This could vary from person. The 6 to 8 hours is an average which is taken. And if we talk about the disturbed sleep, from the point of view of sleep disorder breathing, that I guess we will be discussing later, but this is a sleep which is fragmented sleep. That is, your sleep is fragmented. Now we understand what is fragmentation. One fragmentation could be where person is aware that he got up at 1 o'clock, was not able to go to sleep, or got up at 3 o'clock, not able to go to sleep. Another fragmentation occurs at the subconscious level. That is, that occurs typically in obstructive sleep apnea, where there's actually because of the obstruction to the breathing and deoxygenation and the choking which occurs during the deeper part of the sleep, the person actually wakes up at the subconscious level. In those circumstances, he might sleep for 9 hours, but actually his sleep is not complete, and that is what we are going to discuss. I guess this is a big question that you will be asking me and other panelists. So I'll stop here. But if someone says that my normal sleep requirement is 9 hours, is that normal? I mean, is that okay, or we should? By and large, okay. So I didn't want to go into that. If we talk about sleep disorder breathing, there are largely two types. One is obstructive sleep apnea, one is obesity hypoventilation syndrome or other hypoventilation syndrome. So the people with obstructive sleep apnea may sleep for 9 hours or 10 hours because since there is a fragmentation of sleep at a subconscious level, we'll come back to that. They feel groggy in the morning. Similarly, in obstructive sleep apnea, basically there is hypoventilation and raise in carbon dioxide in the blood. Yeah. That also leads to the longer sleep. Historically, Kumbhakaran, those who are obese. Yes. So they may sleep for 10 hours, still they get up groggy in the morning, their sleep is not rejuvenating and they feel sleepy the whole day and a lot of other things. Despite theoretically having slept to
and his work in this area. And I go to Dr. Khilnani now and ask him about, very quickly, what are the types of sleep apnea? So largely it is divided into two. One is when the person is actually breathing well and there is an obstruction to the breathing. That is called obstructive sleep apnea. And second is that person is breathing less. That involves an obesity hypoventilation syndrome and also some central sleep apnea and apneas which are associated with chronic heart failure. They also fall into that group. So first I will briefly discuss what is obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea, as the name denotes, there is apnea due to the obstruction. That means that person's central system is good, his nervous system is good, is breathing well. This generally, as I said, 60% people are obese. So what happens that as the sleep becomes deeper, the muscle of the upper airways get relaxed, and because of that, the passage becomes narrow. Now this passage, as the sleep gets deeper, that passage becomes more narrow and person starts snoring. Now the sound is produced only when the airflow is through a narrow system. So when this becoming narrow, then the snoring becomes louder and ultimately the breathing stops. And that is called apnea. When the breathing slows down, I did not go into the technical definition, it is called hypoapnea. And what is the result? The result is that person wakes up at a subconscious level, leading to fragmented sleep. There is reduction in the oxygen. That is if we do the polysomnography, it will, combining these two, when this apnea, hypopnea combined, as we call it, if it is less than 5 per hour, we take it as normal. It is 5 to 15 is taken as mild, 15 to 30 is moderate, and more than 30 is called severe apnea. The implication is that there are several times in an hour there is a reduction in oxygen saturation, which leads to several physiological effects like hypertension, the brain strokes, the diabetes gets worse, the cardiovascular diseases become more. And now I'll quickly, in the interest of time, go to what is the central sleep apnea or hypoventilation. Just the definition. Yeah. So the definition is that if you do a sleep study, there is no obstruction to the airflow, but the breathing slows down. There are two main causes. One is because of the obesity, what is called as obesity hypoventilation syndrome, traditionally called as Pickwickian syndrome because of the history that it was. And there are other causes of central sleep apnea, which is because of the neurological conditions. तो ये एक चीज हम लोग यूज करते हैं, लोग जानते नहीं है, स्लीप हाइजीन. हम लोग आपस में अक्सर यूज करते हैं, भाई अपनी स्लीप हाइजीन ठीक करिए. तो स्लीप हाइजीन क्या मतलब है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे हाइजीन होती है हर चीज़ के लिए, सफाई के लिए, खाने के लिए, स्लीप हाइजीन जैसे डॉक्टर सूरी ने बताया कि इंसोम्निया इज मोस्ट कॉमन. अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी कभी स्लीप डिस्टर्ब ना हुई हो, लेकिन जिसको क्रॉनिक इंसोम्निया होती है वो बहुत कॉमन होती है. आपके ओपीडी में, मेरे ओपीडी में, सबके ओपीडी में, कि मुझे नींद नहीं आती. तो इसके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है. सबसे पहली बात तो ये है कि आपका स्लीप टाइम अप्रॉक्सीमेटली फिक्स होना चाहिए. ऐसे नहीं कि किसी दिन आप सोचें मुझे 10 बजे सोना है, दूसरे दिन 12 बजे सोना है, किसी दिन, तो उसमें आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी. दूसरी बात है कि दिन में लंबा कभी नहीं सोना चाहिए. आप अगर 2 घंटे दिन में सोते हैं तो रात को नींद एक्सपेक्ट मत करें कि समय से आएगी. पावर नैप आदमी ले सकता है. तीसरी बात यह है कि शाम को 5 या 6 बजे के बाद कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं, उसमें चाहे कोक हो, चाहे टी हो, चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, वो अवॉइड करना चाहिए. चौथी बात यह है कि आपका रात का जो खाना होना चाहिए वो थोड़ा हल्का होना चाहिए और आपके बेड टाइम से करीब 2.5-3 घंटे पहले ख़त्म कर देना चाहिए. और सोने से पहले आपको भूख हो तो आप दूध पी सकते हैं या कुछ लाइट फ्रूट लेके सो सकते हैं. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अर्बन इंडियन लाइफस्टाइल में रात का खाना इज द लास्ट थिंग, देर से खाते एंड पीपल हैव लेट डिनर्स आफ्टर फिनिशिंग वर्क, वॉच टीवी एंड जस्ट सिंक इनटू द सोफा. मल्टी कोर्स डिनर होता है, वो नहीं होना चाहिए. उसके बाद जो इंसोम्निया का एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो है स्क्रीन, टीवी स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन. बेड टाइम के 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं देखना चाहिए. ये थोड़ा मुश्किल है,
आज की लाइफस्टाइल में, लेकिन ये करना चाहिए। उसके बाद जब आप अगर आपको सच में इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से शॉवर ले लेंगे जस्ट बिफोर स्लीपिंग, देन यू विल स्लीप वेल। अब इसके अलावा एक बात और है कि सपोज आप सो गए और आपको नींद नहीं आ रही है 15-20 मिनट के लिए, टेंडेंसी ये होती है कि आप उठ के फिर अपना मोबाइल देखने लग जाते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया उसका जवाब दे देते हैं, या टीवी ऑन कर देते हैं या अपना लैपटॉप। ये बहुत गलत है। आपको अगर उठ के हैं तो आप थोड़ा वॉक कर लें या किताब पढ़ लें। सोने से पहले किताब पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, अगर उससे भी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है। मिडल ऑफ द नाइट पे भी नींद खुल सकती है किसी चिंता की वजह से, तो उठ के कभी भी आप टीवी या उसको ना देखें, कुछ पढ़ लें या थोड़ा बहुत वॉक करके वापस हो जाएं, आपकी नींद कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, वो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करके 2 हफ्ते से ज़्यादा ना लें, क्योंकि सारी ये दवाइयाँ जो होती हैं वो एडिक्टिंग होती हैं और हैबिट फॉर्मिंग होती है। नींद की दवाइयाँ हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, कई लोग 10-10 साल तक लेते रहते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। नींद ईश्वर ने हमें दी है एज अ नेचुरल गिफ्ट, उसको हम अगर ठीक से अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे तो नींद कहीं नहीं जाती, वो जरूर आएगी। 2 पॉइंट सर पूछूंगा, बिल्कुल बंद समय एकदम समाप्त है हमारा, लेकिन 2 पॉइंट है, अल्कोहल एंड एक्सरसाइज। हाँ, बहुत अच्छी बात बताइए। वो सॉरी ये मैं भूल गया था। ये एक धारणा होती है कि शराब पीने से अच्छी नींद आती है। शराब पीने से नींद शुरू जल्दी जरूर हो जाती है, लेकिन नींद के डिस्टर्बेंस में ज़्यादा होता है। स्लीप। एक और भी चीज़ मैं भूल गया था, स्मोकिंग ऑल्सो विल डिस्टर्ब योर स्लीप। जो लाइफस्टाइल की बात है उसमें एक्सरसाइज इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्लीपिंग, पर ये लोग जो 10 बजे रात को सोचते हैं ना कि अब जिम जाता हूँ मैं, एकदम हैवी एक्सरसाइज करने के बाद अच्छी नींद आने की संभावना कम होती है। एक्सरसाइज ज़रूरी है स्लीप एपनिया के लिए भी और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी सेहत के लिए, लेकिन वो बेड टाइम पे नहीं करनी होती है। दिन में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी। शराब जो है वो नींद को डिस्टर्ब करती है, स्मोकिंग भी डिस्टर्ब करेगी। आजकल कई ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में, कभी इवनिंग में, कभी नाइट शिफ्ट लग रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं? उनका तो पूरा बहुत इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। ये जो कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर में भी करते हैं, प्लस मैं आपको बताऊं मीडिया में भी करते हैं, मीडिया में भी शिफ्ट्स में लगती हैं, डॉक्टर भी करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर भी करते हैं। और थोड़ा सा महिलाओं के लिए पूछूं तो उनके लिए भी है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स दे रहा, पढ़ रहा है, तो वो भी जग रही हैं, कभी दूध वो या फिजियोलॉजिकल है, उसमें कोई कैसे कर सकते हैं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को शिफ्ट में काम करते हैं उनकी स्लीप तो डिसरप्ट होती है। दिन की नींद कभी भी रात की नींद से कंपेयर नहीं करते। उनको ज़्यादा चांसेस होना ब्लड प्रेशर के, स्ट्रेस के, ये चांसेस रहते हैं। लेकिन ये एक इसीलिए जो किसी को भी कंटिन्यूअस शिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जैसे नर्सेज हमारी ड्यूटी होती है तो महीने में 7 दिन उनको नाइट ड्यूटी दी जाती है। उससे ज़्यादा जो लोग हुक्ड हो जाते हैं इससे कि कॉल सेंटर में जो है ना लगातार ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या दिन में फ्री रहने के लिए, कॉल सेंटर में ये बड़ी समस्या है। हाँ। उनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इवन हेयर लॉस हो जाता है। हेयर लॉस हो जाता है, उनका डाइजेशन डिसरप्ट हो जाता है। तो सलाह ये है कि महीने में 7 से 8-9 दिन से ज़्यादा नाइट ड्यूटीज नहीं लगानी चाहिए। एक साल से नींद की गोली ले रहे हैं, सपनों से नींद, ये समझना है। चलिए मैं 2 मिनट लूँगा आपके। नींद जो है ना वो 2 में डिवाइड की जाती है, NREM एंड REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट। ये 2 डिवीजन होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 90 से 120 मिनट की साइकिल होती है, उसमें से 20 से 30 मिनट रैपिड आई मूवमेंट होती है। रैपिड आई मूवमेंट इज कंसिडर्ड डीपर स्लीप। उसी जो इनका प्रश्न है उसके बाबत जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें विविड ड्रीम्स आते हैं। उस दौरान रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पर एक तो मसल सारी रिलैक्स हो जाती है, हार्ट रेगुलर हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है, और
उस समय ही ड्रीम्स आते हैं एंड ड्रीम्स बड़े विविड होते हैं उस समय, जैसे ये बता रहे हैं ना. दिस शुड बी कंसिडर्ड दैट पर्सन इज गोइंग इनटू दैट फेज ऑफ स्लीप विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो नॉन NREM स्लीप का जो थर्ड पार्ट होता है, 1 2 3 होता है, जो थर्ड पार्ट एंड द REM स्लीप, ये मोस्ट रिलैक्सिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ स्लीप है. अगर ये नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपकी स्लीप इतनी रिलैक्सिंग नहीं है, इट इज़ नॉट दैट रिजुविनेटिंग. तो सर आपको अगर सपने आ रहे हैं तो आने दीजिए, उससे घबराइए नहीं. ऐसे केस में अगर कोई डरावना सपना आ जाता है, आदमी की नींद खुल सकती है, डिस्टर्बिंग भी हो सकता है. बेसिकली सपने क्या होते हैं, ये दे रिलीज अवर एंग्जाइटी, दे रिलीज अवर डीप सीटेड. कई लोगों को सपने आते हैं कि मैं एग्जाम में बैठ गया, मुझे कुछ नहीं आ रहा है. ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि दीज आर योर डीप सीटेड एंग्जाइटीज विच आर कमिंग आउट. सपने आना कोई बुराई नहीं है, इट इज नॉर्मल. इट ऑल्सो डिनोट्स कि यू आर गोइंग इनटू दैट फेज ऑफ डीप स्लीप विच इज मोस्ट एसेंशियल एंड रिलैक्सिंग फॉर यू. एंड इनके लिए सलाह ये है कि सपना आ गया, आप वापस सो जाए, कुछ नहीं होगा. Then again you go into the NREM phase 1 2 3 and you go into the REM sleep. इसलिए लोग कहते हैं कि वो सुबह सपने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्लीप इज डीप. फिर वो कहते हैं सुबह के सपने सच्चे होते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आते डीप स्लीप के दौरान है. इंसोम्निया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हम सबको होती है. जो जीता है उसको इंसोम्निया का भी होगा, लेकिन इसको दो में डिवाइड करते हैं हम साइंटिफिकली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. जो इंसोम्निया 1 महीने से कम की है वो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया कहते हैं. उसके लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसको बिहेवियरल थेरेपी से ठीक करना चाहिए. ठीक है ये. और जो लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है, जो 1 महीने से ज़्यादा की है, जो बिहेवियरल थेरेपी के बाद भी कंटिन्यू रहती है, उसके लिए फिर इंट्रिकेट टेस्ट या स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. Thank you. These are very important points.